سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا ہو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اساتی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ کامیابی دولت کا نہیں، کامیابی شہرت کا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں سر سید محمد نعیم شاہ صاحب کا اور سر سید کیسر محمود شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ اگر آپ سب میری بات کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں خوب انداز میں کہا، اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں سے مخاطب ہے، ہم تو مائل کے کرم ہے کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے شہر میں منزل ہی نہیں، تربیت عام کو ہے جو ہے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی ہے وہ دل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کر دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا جائی دیتے ہیں، ہاتھ بے زور ہے ایک ہاتھ سے اگر ہے، امتی بائے رسوائی کے بمبر ہے، بشکن اٹھ گئے باقی جو ہے بتگر ہے، تھا براہیم پتہ فخر آدم بادہ آشام نہیں بنائے ہم بھی نہیں، ہر میں کعبانیاں بت بھی نہیں تم بھی نہیں، وہ بھی دن تھے کہ مایا ایرانی تھا، نادش موسف اللہ تیرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا خدائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہے جائی تھا، کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مسل کو مقامی کر لو۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کر لو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں نمازوں کی خبر نہیں، اگر کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو تم اللہ سے محبت کے دعوے دار بنتے ہو، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، سویرا جات سے کہتے ہیں سواری ہے، تمہیں کیا لگے گا عالم وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اس میں باہم جو نہیں جہنم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ و فرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلام کے مدفن تم ہو، ہونے کو نام جو خبروں کی تجارت کرتے، یا نہ بیچو گے جو مل جائیں گے شرم کرتے، سفید دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا ہو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے مجھے پڑتا ہو، پھر انسان اللہ سے شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے، شور ہو گئے دنیا سے مسلمان ابود، ہم ہی کہتے ہیں کہ کہیں مسلمان موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہے
जिन्हें देखकर शर्माई न हो। यूं तो सैयद भी हो, मुस्सा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। हमारे जहनों में जो ख्यालात बने हुए हैं, कामयाबी पैसे से है, कामयाबी इक़्तिदार से है, कामयाबी शोहरत से है, कामयाबी वाह से है। जितना दौलतमंद उतना कामयाब, जितना मशहूर उतना कामयाब, जितना पॉपुलर उतना कामयाब, जो हुकूमत पर पहुंच गया कामयाब। जो तसव्वुर कामयाबी का होगा उसी के लिए आपकी भाग दौड़ होगी, उसी के लिए जदोजहद होगी, उसी के लिए दावराए सर होगी। ये जो शय यहाँ नफी हो रही है, कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी इक़्तिदार और हुकूमत से नहीं, बल्कि कामयाबी है ईमान से, अमले साले से है, तवस्सो बिल हक से है, तवस्सो बिल सब्र से है। अब वो जिस नुक्ता नजर का ऐसे झूठ का जब मैंने झूठ है, इसका बदल जाना ही इंसानी शख्सियत के अंदर इनकलाब करता करेगा। अब आपका नतीजा क्या निकला? अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो फिरौन नमरूद बहुत कामयाब थे। अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो कारून बहुत कामयाब था। कामयाबी ऐसी नहीं है, कामयाबी इंसान दौलत से कारून की दौलत तक पहुंच जाए। दुनिया में इक़्तिदार और दौलत के एतबार से नमरूद और फिरौन तक उनका मकाम हासिल कर ले, वो नाकाम है, वो बर्बाद। और अबू ज़र गफ़ारी अल्लाह ताला ने कामयाब है, जहाँ उनके पास कुछ नहीं था, झोपड़ी तक नहीं थी, घर नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी महफिल में जाना चाहे तो उन्हें इजाजत ना मिले, अगर वो कहीं रिश्ता करना चाहे तो उनसे कोई रिश्ता करने को तैयार ना हो। लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो मकाम है कि अगर वो भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह ताला उनकी कसम की लाज रखते हैं। यह है फर्क, ये जान लीजिए अच्छी तरह। इस बात का मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह कहना आसान, लेकिन इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि हम अपने माहौल से मुतासिर होते हैं कि हमने बड़ा महल देख लिया, जरूर एक दफा दिल में झुरझुरी आती है। किसी के हाथ में फोन देख लिया, जरूर एक दफा आसाब के अंदर बेख्तियार सोचता है, बड़ा खुशनसीब, बड़े पैसे वाला, बड़ा कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकती है, कि यही सबसे बड़ी नाकामी हो सकती है, कि यही आखिरत वाले दिन पकड़ कर दरिया ना बन जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारी जिंदगियों में तब्दीली कैसे? आज हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक हमारे बड़े लोगों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ तबसरे करते हैं। फला ऐसा है, फला वैसा है, यह हुकूमत चोर है, फला हुकूमत अच्छी थी। पूरा दिन ऐसे कीमतों से भरे होते हैं। कभी हमने ये ना सोचा कि हमारे करने का काम क्या है, जो हमें वक्त वक्त औलाद की तरबियत पे लगाना चाहिए। हम दूसरों के तबसरों और गीबतों में जिंदगी गुजारते हैं, जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने और पढ़ाने में लगाना चाहिए। वो हम लेकिन मैं देखता हूँ अक्सरियत मोबाइल, टिकटॉक, नाच गाने में मशगूल है, तो फिर नतीजा वही निकलेगा, फिर औलाद दीनदार नहीं, फिर औलाद नासिह है। मेरी बात याद रखें, ये नाकामी सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि सबसे बड़ी नाकामी आखिरत वाले दिन देखनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया है कि जहन्नम बहुत बुरी जगह है। ये हमारे अंदर तब्दीली कैसे आएगी? ये तब्दीली कुरान को पढ़ने और पढ़ाने से आएगी। कुरान ने शहर बदल दिए, गांव बदल दिए, अकायद बदल
दिए, सोचने के अंदाज बदल दिए, रास्ता बदल दिया, मंजिल बदल दी, माशरत बदल डाली, तिजारत बदल डाली, हुकूमत बदल डाली, सकाफत बदल डाली, सियासत बदल डाली, जिंदगियां बदल डाली, जिंदगियों के रुख बदल डाले, ज़हर बदल डाला, इंसान बदल डाला। डाकू लुटेरे मुआफिर और निगाहबान बन गए, जालिम और सितम आदिल हमदर्द इंसान बन गए, फासिक और फाजिर जाहिद और पाक और साफ बन गए, अरब के चरवाहे ज़माने के मुक़द्ददा रहनुमा। अबू बकर था सिद्दीक बन गया, उमर था फारूक बन गया, उस्मान था ज़ुन्नरैन बन गया, अली था हैदर कररार बन गया। सब कुछ कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, ये इंकलाब कैसे आया? मैं करूँ ये इंकलाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से बना। ये इंकलाब कुरान के और कुरान को पढ़ने और पढ़ाने से आया। ये तग़य्युर कुरान को अपना इमाम और मुक़द्ददा बनाने से बना। आज भी हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, उसी तरह मौजूद है जिस तरह नाज़िल हुआ था, उसकी किसी आयत में तब्दीली नहीं आई, उसका कोई हर्फ, कोई ज़बर, कोई शोशा नहीं बदला। लेकिन अरे मुसलमानों, तुम कितने बदनसीब हो, तुम्हारे घरों में खजाना है मगर तुम दूसरों से भीख मांगते फिर रहे हो, तुम्हारे पास रोशनियों का मंबा है मगर तुम घरों से रोशनियां मांग रहे हो, तुम्हारे पास अब शीरी का दरिया बह रहा है मगर तुम अल-अतश पढ़ रहे हो। अरे छोड़ दो और मगरबी जमहूरियत के शराब और कुरान का दामन थाम लो, हाँ यूरोप तुम्हारे कदमों में है। अफसोस है तुम पर कि तुम ही खजाने के साथ बने बैठे हो, न खुद कुरान से फायदा उठाते हो न दूसरों के इस्तेफादा के। शायद कहता है उस जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होगा,